Good morning, everyone. Today, what we are going to do is the fourth method of collecting primary data. So, in our previous class, we have already discussed about the three methods of collecting primary data. Let's revise that once and then we will start with the topic information through questionnaire. When we have done the primary data collection, there were three methods that we have already discussed. The first one is direct personal investigation, in which the investigator himself goes to the various informants and collect the information. The second method was indirect oral investigation, where we do not collect the information from the person himself, but we collect the information from some other person who might know their proper information. Like we have taken the example of workers. हमारी फील्ड में अगर वर्कर्स वर्क कर रहे थे तो उनसे डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन लेने की बजाय हमने क्या किया था, हमने उनके एम्प्लॉयर से इन्फॉर्मेशन ली थी, क्योंकि हमें लगता था कि उनके एम्प्लॉयर को उनके बारे में ज़्यादा पता होगा. The third thing that we have done earlier also is the information through local correspondent, where the investigator do not go himself to collect the data, but he sends certain persons, he hires certain person, they go for collecting the data and provide the result to the investigator. So now we will be doing our fourth method, that is information through questionnaire. Under this method the investigator prepares questionnaire for inquiry. मतलब इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करेगा, यहाँ पर सेट्स ऑफ क्वेश्चन बना लेगा. क्वेश्चन पेपर पहले ही बना के रख लेगा, वहाँ पे वो डिसाइड कर लेगा कि कितने क्वेश्चंस हमने पूछने हैं. देन वो जाके उनसे, अब उस क्वेश्चनेयर को पूछने के भी दो तरीके हो सकते हैं. पहले इसमें क्या होता है, आपने क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करना है. क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करने के बाद देयर आर टू वेज फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर. द फर्स्ट वे इज मेलिंग मेथड एंड द सेकेंड इज एन्यूमरेटर मेथड. So let's discuss these two methods one by one. The first method is mailing method. Under this method, mailing method, क्या किया जाता है कि यहाँ पर क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करने के बाद द इन्वेस्टिगेटर मेल्स दैट क्वेश्चनेयर, उन क्वेश्चनेयर को वो मेल कर देता है सारे जो रिस्पोंडेंट है उनको. जो वो रिस्पोंडेंट होंगे वो अपने आप उसको फिल करके आंसर बैक कर देंगे. सो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चनेयर प्रिपेयर होगा, इन्वेस्टिगेटर ने क्या करना है, उनको मेल कर देना है. किसको मेल कर देना है, रिस्पोंडेंट को. रिस्पोंडेंट उसको फिल करके वो इन्वेस्टिगेटर को वापस कर देंगे. सो जो मेलिंग मेथड है ये कहाँ सूटेबल है. मेलिंग मेथड इज़ सूटेबल व्हेन द एरिया इज़ वेरी लार्ज, जहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है और जो इन्वेस्टिगेटर है वो पर्सन्स हायर नहीं कर सकता, जगह जगह जाके क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता, और जो आपके इन्फॉर्मेंट्स हैं वो सारे एजुकेटेड हैं, आपको पता है वो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, वो आपके सारे आंसर्स पे कर देंगे. सो मेलिंग मेथड तब सूटेबल है व्हेन द एरिया इज़ लार्ज एंड यू डोंट हैव द रिसोर्सेज to hire enumerator, to hire the various persons that can go in your place and collect the data. And second is when the informants are educated, you know that they will mail you back the answers. So mailing method, let's revise it one. That what is mailing method? Under mailing method, a set of questionnaire was prepared by the investigator and then the investigator mails the questionnaire to various respondent. They read the questionnaire and then send you back the answers. So this was the mailing method. The second method is enumerator method. So let's see what is enumerator method. Enumerator himself approaches the informants. The questionnaires are filled by the enumerator themselves by putting question schedules. Enumerators are given training. Under this method, हम ये तो नहीं कह सकते कि जैसे मेलिंग मेथड में सारे जो इन्फॉर्मेंट्स थे वो सारे एजुकेटेड थे, पर ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर कोई स्टडी कर रहा है. जब भी हम किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो आपके जितने भी इन्फॉर्मेंट हैं, जो रिस्पोंडेंट हैं, जिनसे आपको आंसर्स चाहिए, वो सारे के सारे हमेशा ही एजुकेटेड होंगे.
सो अंडर दिस मेथड जो एन्यूमरेटर है, जो पर्सन है जिसने इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो एन्यूमरेट कर रहा है, जिसने करनी है इन्वेस्टिगेशन, वो क्या करेगा, वो खुद जाकर इन्फॉर्मेंट्स को अप्रोच करेगा। वो कोई भी क्वेश्चन पेपर जो है वो मेल नहीं करेगा, वो अपने क्वेश्चन पेपर को बनाएगा, क्वेश्चनियर सेट करेगा एंड देन ही विल हिमसेल्फ अप्रोच टू द इन्फॉर्मेंट्स, और वो उनसे जाकर उनको वो क्वेश्चंस पूछेगा, जो वो आंसर देंगे वो खुद ही उसको फिल भी करेगा। इन्फॉर्मेंट्स को नहीं कह देगा कि आप आंसर फिल कर दो, नो, उनसे जाके क्वेश्चन पूछेगा और फिर खुद ही उनको फिल आउट भी करेगा। जब एन्यूमरेटर खुद ही आंसर्स को फिल कर रहा हो, उस चीज़ को बोला जाता है शेड्यूल फिल करना। एंड देन एन्यूमरेटर्स को इस चीज़ के लिए पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। So what is the difference between the enumerator method and the mailing method that we have discussed is, under the mailing method जो क्वेश्चनर है वो आपने सिर्फ प्रिपेयर करना है और फिर वो क्या कर देना है, मेल कर देना है। जो पर्सन्स हैं वो खुद ही उसको क्या करेंगे, फिल करके आपको सेंड कर देंगे। लेकिन व्हाट इज डन अंडर एन्यूमरेटर मेथड इज द एन्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोचेस द इन्फॉर्मेंट्स and ask them the question and also record the answer himself। वो खुद ही सारे इन्फॉर्मेंट्स को अप्रोच करता है, उनको बोलता है कि आप ये क्वेश्चंस हैं, देन वो जो भी आंसर देते हैं, जो भी उनका फीडबैक होता है, उस फीडबैक को रिकॉर्ड भी खुद ही करता है। अब यहाँ पे ये मेथड कब सूटेबल है, एक तो ये मेथड तब सूटेबल होता है जब आपको पता है कि आपके रिस्पोंडेंट आर नॉट वेरी एजुकेटेड, एंड द सेकेंड थिंग इज द एरिया इज लार्ज, यू कैन हायर वेरियस एन्यूमरेटर्स। वो पर्सन बहुत सारे एन्यूमरेटर्स को हायर कर सकता है वो, और जाकर वो उन स्टडी को इकट्ठा, उन सारे रिस्पॉन्सेस को इकट्ठा कर सकते हैं। The second thing when this method is suitable is the second situation when the response is required quickly। देखिए अभी ये भी है कि अगर आप किसी को मेल करें, when you mail somebody, it is not possible that everyone will read that mail immediately and send you the answers immediately. They will take their own time and there will be certain persons who will not respond at all। So अगर आपको क्विकली सारे रिस्पॉन्सेस चाहिए तो उस टाइम पे कौन सा मेथड बेटर है, कौन सा मेथड सूटेबल है, दैट इज एन्यूमरेटर मेथड व्हेन द रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड क्विकली। So we have already done what are the various sources of primary data collection in our previous class, that is the Zoom class that I have taken. I think I have covered 3 methods, that is direct personal investigation, indirect oral investigation, and then the information through local correspondent. Now what we have done is the 4th method of data collection, that is information through questionnaire. Information through questionnaire, and under information through questionnaire there are 2 ways by which we can ask information through questionnaire, that is mailing method or enumerator method. So both of these are covered now. Now our next topic is construction of questionnaire। जब आप क्वेश्चनियर बना रहे हो तो आपको कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो ध्यान में रखनी है ताकि जो आपका क्वेश्चनियर है वो एक सूटेबल क्वेश्चनियर हो और आपको मैक्सिमम रिस्पांस जो है वो सारे रिस्पोंडेंट दें। यानी कि एक क्वेश्चनियर में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सो वी विल सी द क्वालिटीज़ वन बाय वन। The first quality that a good questionnaire should have is limited number of questions. The enumerator should not ask too many questions. There should not be so much of questions in a questionnaire that the respondents are just tired to give you any answer. So आपके क्वेश्चंस जो होने चाहिए वो लिमिटेड होने चाहिए, नॉट ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम कि आपकी जो स्टडी है वही पूरी ना हो। लिमिटेड क्वेश्चंस में आपने अपनी स्टडी को पूरा करना होता है। द नेक्स्ट क्वालिटी दैट अ गुड क्वेश्चनियर शुड हैव इज सिंप्लिसिटी। द लैंग्वेज दैट वी आर यूजिंग इन आवर क्वेश्चंस शुड बी सिंपल।
it should be the local language from the persons that you are going to get that you want to give them answers. So you should use their local language, and the language should be simple. No complex word, no technical words should be used. There will be no problem in giving the answers. The third thing is proper order. The questions should be asked in a proper order. First, you have to ask them about their name, what are their qualification, then their income, one by one, in a proper order. So, it is not possible that you can ask somebody about, like for example, first you have to ask when you are going to get the data of the income of various person. So first ask them whether you are working or not. पहले ये पूछना है कि आप काम करते हो या नहीं करते हो. Then you have to ask them about their occupation, किस तरह का काम करते हो. Then about their income. ऐसा नहीं होगा पहले ही उनसे पूछना शुरू कर दो, हाँ जी बताइए आपकी कितनी इनकम है. पहले इनकम पूछ रहे हो, बाद में पता चले वो पर्सन कहे कि मैं तो जी काम ही नहीं करता हूँ, आई एम अनएम्प्लॉयड. सो क्वेश्चंस जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, इन प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए उनका. आप एक सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछने हैं आपने. नेक्स्ट थिंग इज नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन, नो कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन. आपने कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं जो बहुत ही पर्सनल हो, जिनकी, या फिर ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं पूछने हैं जिनकी आप में की स्टडी से कोई रिलेशन ना हो. फालतू कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किसी से पुट नहीं करने हैं. एंड सेकेंड थिंग इज you should not ask any controversial question from anybody relating to their religion or anything that can create controversy later on. The next thing is calculation. Okay, a good questionnaire should not involve too much of calculation, because nobody has so much of time that they will take their time and do so much of calculation for giving you answers. So it should not contain so much of calculation that the respondent feel very tired to give you any answers. So the next quality is pilot survey. So you should know first what is the meaning of the term pilot survey or pilot testing, pre-testing. It means when you are going to get the answers from the real respondent, first you have to test it with a few people. अपने क्वेश्चंस को सबसे पहले कुछ पर्सन से टेस्ट कर लो. अगर आपको लग रहा है कि ये लोग मुझे सही रिस्पॉन्स दे रहे हैं और मेरी स्टडी जो है वो करेक्ट जा रही है, मतलब मैं पूरी स्टडी करने से पहले कुछ पर्सन्स पे अपने क्वेश्चंस को टेस्ट करूँगी. अगर मुझे ये लगे कि येस दे आर गिविंग मी करेक्ट आंसर्स, मेरी सारी जो स्टडी है वो करेक्ट जा रही है, मुझे गुड रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिस तरह का रिस्पॉन्स आई वांट, आई एम गेटिंग दैट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, सो देन यू कैन कंटिन्यू विद योर स्टडी एंड यू कैन कंटिन्यू विद योर रिसर्च और सो. बट अगर आपको ये लगे कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो करेक्ट नहीं है, they are not giving you the correct response, or they are not you are not getting the information that you require for your study, so then you can change your questionnaire, you can add certain questions or delete some questions. The thing then we okay, this thing is known as pilot survey, जहाँ पे हम अपने क्वेश्चंस को पहले सारी रियल पब्लिक में लेके जाके पूछने से पहले ही उसको टेस्ट कर लेते हैं कुछ लिमिटेड पर्सन्स पे. अगर वो टेस्ट क्लियर हो जाता है, अगर वो टेस्ट सक्सेसफुल होता है, देन वी गो एंड आस्क दिस क्वेश्चंस टू द रियल पब्लिक ऑल्सो. देन द नेक्स्ट क्वालिटी दैट अ गुड क्वेश्चनेयर शुड हैव इज द इंस्ट्रक्शन. A good questionnaire should have the instruction how to fill the answers and how can they answer the questions about the various queries that the persons may have while filling out your answers or giving you answer. So a good questionnaire should have the
Okay, a good questionnaire should have the required instruction that will help the respondent to give the answers. उसमें इतनी तो सारी instructions होनी चाहिए जिसकी help से जो respondent हैं वो answer करेंगे. So next quality is cross verification. आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए पूछ लेने चाहिए ताकि आपको पता लगे कि जो आपने पिछला क्वेश्चन पूछा है वो उसने करेक्ट आंसर दिया या नहीं दिया. कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछिए ताकि आपके पिछले क्वेश्चंस की भी क्या हो जाए, क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाए. रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न. अगर तो आप जो है वो क्वेश्चन मेलिंग मेथड के थ्रू भेज रहे हो तो नीचे एक मैसेज ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे ये लिखा जाए कि आपको ये क्वेश्चनेयर कितने टाइम में रिटर्न बैक करना है, ताकि वो पर्सन उस क्वेश्चनेयर को अपने पास ही ना रखे और जो है वो रिटर्न भी कर दे. नेक्स्ट, जब वो अगर वो एन्यूमरेटर करवा रहा है, एन्यूमरेटर फिल आउट करवा रहा है, देन ही कैन get the questionnaire himself, there will be no problem. But if you are sending it through mailing method, तब वहाँ पे आपके क्वेश्चनेयर पे एक मैसेज ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे ये लिखा हो कि आपने ये क्वेश्चनेयर कितने टाइम में रिटर्न बैक करना है. So these were the qualities that the good questionnaire should have. Okay, now we will be doing our next topic, that is sources of secondary data. Okay, now about the sources we will be discussing it later on, but let's discuss what is the meaning of the term secondary data. Secondary data is the data that we do not collect ourselves. We get this data from some agency or from somebody that has originally get this data. सो सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जो आप ओरिजिनली जाके खुद इकट्ठा नहीं करते हो. आप ये डाटा किसी न किसी पब्लिकेशन से, किसी न किसी एजेंसी से ले लेते हो. उसने ये डाटा इकट्ठा किया होता है, आप सिर्फ इसको क्या करते हो, यूज़ करते हो. हमने देखा है पहले सेकेंडरी डाटा के बहुत एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं. एडवांटेजेस क्या हैं इसके, ये इकोनॉमिकल है, आपको इजीली डाटा मिल जाता है, आपने सिर्फ उसको यूज़ करना है, आपका कोई टाइम नहीं लग रहा, आप इजीली इसको ले सकते हो. what are the disadvantages of getting the secondary data, कि आपको पता नहीं है कि जो आप डाटा यूज़ कर रहे हो वो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने यूज़ करना है वो उसी ऑब्जेक्टिव के लिए इकट्ठा किया गया था या फिर किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए इकट्ठा किया गया था. व्हेन वी आर सेकंड डिसएडवांटेजेस, व्हेन वी आर यूजिंग सेकेंडरी डाटा, वी हैव टू मेक सर्टेन टाइप ऑफ changes in that data so that it can suit our study. So this is also a very tedious task that we have to do. Now we will see what are the various sources from which we can collect the secondary data. The first source is government publication. जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, दे जो उनकी एजेंसीज होती हैं आगे, जैसे RBI है, वो बहुत सारी पब्लिकेशंस जो हैं वो होती हैं उनकी, जहाँ से बहुत सारा वो स्टैटिस्टिकल डाटा पब्लिश करती हैं दैट वी कैन यूज़ फॉर आवर ओन पर स्टडी. लाइक अगर आपको फाइनेंस के लिए रिलेटेड किसी तरह की कोई चाहिए, कोई स्टडी करनी है फाइनेंस से रिलेटेड, सो जो RBI है वो RBI बुलेटिन्स आती हैं, उनकी मैगजीन्स आती हैं, दैट यू कैन यूज़ फॉर योर स्टडी. So government publication is the one source from which we can get the secondary data. The next thing is semi-government publication. There are semi-government publication like municipalities जो होती हैं वो कई तरह का डाटा पब्लिश करती हैं, डाटा related to health, डाटा related to birth. So that can we use for our studies. Next thing is report of committees and commission. गवर्नमेंट जो है वो बहुत तरह की कमेटीज़ एंड कमीशंस बनाते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस. लाइक देयर इज़ प्लानिंग कमीशन नाउ नोन एज नीति आयोग फॉर प्लानिंग, 5-year प्लानिंग दैट इज़ डन इन इंडिया. वो बहुत तरह की जो है वो स्टैटिस्टिकल डाटा पब्लिश करते हैं. अगर आपको उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो दैट यू कैन यूज़ द रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस कमेटीज़ एंड कमीशंस दैट आर मेड बाय द गवर्नमेंट. The next is publication of trade association. ट्रेड एसोसिएशंस क्या होते हैं, जैसे अगर कोई शुगर मिल्स वाले हैं तो वो इकट्ठे होकर जब एक ऑन अ लार्जर स्केल जो उनकी एसोसिएशन होगी तो हम बोलेंगे उसको शुगर मिल्स एसोसिएशन. वो अपने
अपने ट्रेड के रिलेटेड बहुत सारा डाटा जो होते हैं वो पब्लिश करते रहते हैं. दैट डाटा यू कैन यूज़ फॉर योर ओन स्टडी. लाइक फॉर एग्जांपल शुगर मिल एसोसिएशंस हैं, उन्होंने डाटा पब्लिश करेंगे फॉर शुगर रिगार्डिंग द शुगर मिल्स इन इंडिया. वो कैसे काम करती हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, वो सारा डाटा वो पब्लिश करेंगे. इफ़ यू वांट दैट इन्फॉर्मेशन देन यू कैन यूज़ फ्रॉम दैट association. The next thing is journals and papers. There are various magazines and newspapers from which you can get the statistical data and use for your own study. Next thing is international publication. The international organizations like UNO, WHO, they also publish they also publish statistical data. अगर आपको ज़रूरत हो, ये UNO जो WHO वो कई तरह का जो स्टैटिस्टिकल डाटा है अबाउट वेरियस नेशंस डिफरेंट कंट्रीज़ वो पब्लिश करती हैं. अगर आपको ज़रूरत हो तो देन यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट स्टैटिस्टिकल डाटा फॉर योर ओन स्टडी. The next thing that we are going to do today is precautions in the use of secondary data. जब भी हम सेकेंडरी डाटा को यूज़ करते हैं तो हमको क्या प्रिकॉशंस हैं जो लेनी चाहिए, उसके बाद ही हमें डायरेक्टली डाटा यूज़ नहीं कर लेना चाहिए. कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए. आफ्टर दैट यू कैन यूज़ द सेकेंडरी डाटा. अब पहली प्रिकॉशन है एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन. आप जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा यूज़ करो तो सबसे पहले ये जान लो कि जो वो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी एबल है उस डाटा को इकट्ठा करने के लिए. लाइक अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिकेशंस ले रहे हो, किसी गवर्नमेंट ने डाटा इकट्ठा किया है एंड यू आर यूजिंग दैट डाटा, तो वो तो रिलायबल होगा, दैट यू कैन रिलाई ऑन. बट अगर आप किसी भी अननोन मतलब किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का डाटा ले रहे हो तो सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एबल है डाटा इकट्ठा करने के लिए. अगर नहीं देन यू शुड नॉट यूज़ दैट सेकेंडरी डाटा, क्योंकि फिर आपकी जो स्टडी है वो सही नहीं होगी. द नेक्स्ट थिंग इज़ मेथड ऑफ कलेक्शन डाटा. जो आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा लो, जिसकी भी आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन से भी आपने डाटा लिया है, सेकंड जो थिंग है आपको ये देख लेनी चाहिए कि वो जिस मेथड से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव से मैच करता है कि नहीं, वो ठीक है या नहीं. द थर्ड थिंग इज़ टाइम ऑफ कलेक्शन. ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हर टाइप ऑफ सेकेंडरी डाटा को यूज़ करने से पहले हर ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर कर लेना चाहिए. टाइम ऑफ कलेक्शन. अगर तो देखिए ये हो सकता है वो डाटा जो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने से गवर्नमेंट ने लिया है, वो उन्होंने ये डाटा they have taken this data in say about 10 years ago, 20 years ago or 50 years ago. और आज के टाइम में ना प्राइस लेवल चेंज हो रहे हैं, सब कुछ चेंजेस हो रहे हैं. सो हो सकता है कि उस टाइम का इकट्ठा किया हुआ डाटा आज के टाइम में आपको सूटेबल ही ना हो, या फिर ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ने जब डाटा इकट्ठा किया उस टाइम पे वार थी, मान लो उस टाइम पे वॉर चल रही थी, उन्होंने प्राइजेज ऑफ डिफरेंट गुड्स एट दैट टाइम इकट्ठा कर लिया डाटा. अगर आप उस टाइम को आज के टाइम से कंपेयर करोगे देन योर स्टडी विल नॉट बी करेक्ट. उस टाइम के जो प्राइजेज होंगे वो डिफरेंट होंगे, उस टाइम की कंडीशन डिफरेंट थी, इस टाइम की कंडीशन. द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कंसिडर इज़ डेफिनेशन ऑफ अ यूनिट. आपको ये देखना है कि जिस चीज़ का भी आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो उन्होंने यूनिट ऑफ मेजरमेंट कौन सी ली है. लाइक फॉर एग्जांपल दे हैव कलेक्टेड द डाटा इन मीटर्स एंड यू वांट द डाटा इन सेंटीमीटर्स, सो यू हैव टू डू द कन्वर्जन. सो उस चीज़ पे भी ध्यान रखिए कि उन्होंने डाटा किस यूनिट में इकट्ठा किया है. से फॉर एग्जांपल उन्होंने लीटर्स में किया है, सेंटीमीटर्स में किया है, मीटर में किया है, और आपको वो डाटा किस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में चाहिए. द नेक्स्ट थिंग इज़ एक्यूरेसी. जब भी डाटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लो तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि वो डाटा उन्होंने एक्यूरेट है, उसकी एक्यूरेसी पर आप रिलाई कर सकते हो. अगर कर सकते हो देन यू कैन रिलाई ऑन दैट स्टैटिस्टिकल डाटा एंड कंटिन्यू विद योर स्टडी. अगर वो डाटा आपको एक्यूरेट ना लगे देन यू शुड नॉट यूज़ दैट डाटा फॉर योर स्टडी, बिकॉज योर स्टडी विल बी अफेक्टेड, योर रिसर्च विल बी अफेक्टेड बाय यूजिंग दैट डाटा विच इज़ इनकरेक्ट. Okay, now the next topic is two important sources of secondary data collection.
हमने देख लिया है कि हम सेकेंडरी डाटा बहुत तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं. वी कैन टेक द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, ट्रेड एसोसिएशन, reports by committees and commissions, and many more. But what are the two very important sources of secondary data collection is Census of India and NSSO. So first we will see what is the Census of India. We know that after every 10 years there is calculation of population in the country, and various other things are also calculated by the government. So that is known as the census, and from that census we can get the information regarding population, about the gender of population, like how many males and how many females are there in the country, what is the rate of population, how much are literate, how much are illiterate. If you want that type of information from your study, then you can definitely get it from the Census of India, that is published by the government. The next is NSSO, National Sample Survey Organization. This is also the government organization which publish various type of data relating to housing conditions of the people of India, then employment and unemployment condition of India, sources of household income, like जो person है वो कहाँ से अपनी इनकम को अर्न कर रहे हैं. ये सारी जो आपको डाटा है ये आपको डाटा मिल सकता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन से, उनके रिपोर्ट से. So now we are done with the chapter number 3, that is source of collection of data. Now we will be discussing certain objective type questions. Okay, now we will discuss about some questions relating to this chapter. The first question is define primary data. So we know the data that we collect ourselves from the origin is known as primary data. You don't use anybody else's data, you collect your own data. And there are 4 sources from which we can collect the primary data. The second question is define secondary data. The data that is originally collected by somebody else and we are only using that data for our own study is known as secondary data. The third question is mention 2 demerits of indirect oral investigation. हमने पहले ही ये कर चुके हैं हम कि जो इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन होती है वहाँ पे क्या होता है. वहाँ पे आप जो है डायरेक्टली उस पर्सन से अप्रोच नहीं करते हो, उस पर्सन से किसी एक ऐसे पर्सन से अप्रोच कर रहे हो जिससे आपको लगता है कि शायद उसको क्या होगा, सारा जो है इस चीज़ उस पर्सन के बारे में नॉलेज होगी. सो इसके 2 डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इसमें. Okay, so now we will be discussing about the 2 demerits of the indirect oral investigation. The first is accuracy. Under this method, the data so collected is not very reliable. जो आपने विटनेस जिसको आप चूज़ करते हो, मे बी वो अपनी केयरलेसनेस की वजह से या किसी भी और वजह से, नेपोटिज्म की वजह से, फेवरिज्म की वजह से वो जो डाटा आपको दे हो सकता है वो एक्यूरेट ना हो. सो द फर्स्ट problem in case of indirect oral investigation is that the data that we collect in this method is not very reliable. Sometimes the witnesses जो हम चूज़ करते हैं वो जो आपको प्रोवाइड करते हैं डाटा वो हमेशा ही करेक्ट हो ये पॉसिबल नहीं होता. वो कई बार अपने जो उनके फेवरेट पर्सन्स होते हैं उन्हीं के फेवर में सारा बोलते हैं, जो उनके जिनसे उनकी नहीं बनती उनका डाटा इनकरेक्ट दे देते हैं. द सेकेंड इज़ द चॉइस ऑफ विटनेस. हो सकता है आपने किसी ऐसे विटनेस को चूज़ किया हो जिसको डाटा के जिसको उस पर्सन्स के बारे में करेक्टली पता ही ना हो. तो फर्स्ट इज़ द डाटा इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट. द सेकेंड इज़ द रॉन्ग चॉइस ऑफ विटनेस. अगर आपने चॉइस गलत की है विटनेस की तो आपका टाइम ही ख़राब होगा. हो सकता है उसको पता ही ना हो जिसके बारे में आप पता करना चाहते हो. क्वेश्चन नंबर 4. The progress report of the railway department published by the railway department is what kind of data? अगर रेलवे डिपार्टमेंट ने अपने डिपार्टमेंट के बारे में कोई रिपोर्ट पब्लिश की है और आप उस डाटा को यूज़ कर रहे हो फॉर एनी ऑफ योर स्टडी, सो वो डाटा किस तरह का डाटा होगा आपके लिए. आपने तो वो डाटा पब्लिश नहीं किया. दैट डाटा इज़ पब्लिश्ड बाय रेलवे डिपार्टमेंट और सिर्फ आप उस डाटा को यूज़ कर रहे हो.
सो दैट डाटा विल बी सेकेंडरी डाटा फॉर यू. आप सिर्फ उसको यूज़ कर रहे हो, पब्लिश वो रेलवे डिपार्टमेंट ने किया है, सो दैट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डाटा. Question number 4. Why is pilot survey important? We have already discussed what is pilot survey, what is pre-testing. इसका मीनिंग क्या होता है कि हम डायरेक्टली पहले ही क्वेश्चन जाकर लोगों से पूछें, अपनी रियल पब्लिक से पूछें, उससे पहले हम उसको टेस्ट कर लेते हैं किसी 4-5 जो हमारे पर्सन्स हैं उनमें से. अगर वो लोग सही इस चीज़ का रिस्पॉन्ड करेंगे, देन अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमारी जो स्टडी है वो सक्सेसफुल हो सकती है, तब आप रियल पब्लिक के पास जाओगे. अगर आपको लगता है कि कुछ कोर क्वेश्चंस इसमें ऐड करने वाले रह गए हैं, मुझे सही रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कुछ कम क्वेश्चंस हैं, या फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए मैंने, लोग सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे, तो आप उस चीज़ को और सुधार सकते हो. तो ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप रियल स्टडी करने जाओ, आप सारे अपने पर्सन्स हायर किए हैं उनको भेज दो कि जाओ डाटा इकट्ठा करके आओ. उससे पहले ही आप उस चीज़ को टेस्ट कर लो, ताकि जो गलतियाँ वहाँ पे होने वाली हैं, द मिस्टेक्स दैट might occur while doing your testing in the real life situation, you get to know about that earlier. आपको उसके बारे में पहले से ही पता लग जाता है और आप उस चीज़ को क्या कर सकते हो, सुधार सकते हो, अपने फेवर में उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो. इसलिए जो पायलट सर्विंग है इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप कभी भी क्वेश्चनियर मेथड से जब भी आप जा रहे हो करने के लिए डाटा इकट्ठा, तो पहले उस क्वेश्चनियर की पायलट टेस्टिंग, पायलट सर्वे करवा लेना चाहिए. नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ गुड क्वेश्चनियर. ये हम पहले ही देख चुके हैं कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं गुड क्वेश्चनियर की. एक होती है जो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, नो अनडिज़ायरेबल क्वेश्चन, और बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं, वो सारी आप इसमें लिख सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ secondary data is collected. There are 4 options. The first is by filling up schedules, the second is by filling questionnaire, and third is through published and unpublished sources. D, all of this. So A option is relating to primary method of collection. Second is also primary data collection method. Only C option where we use published and unpublished data is relating to secondary data. So our answer will